Hello dear children, welcome once again to your channel Computer Science with Meena Dogra. Hope all of you are hailing hearty bacha. With a CBSE board class 10th information technology which is a skill subject कि victory for both series में term 2 के लिए ठीक है ना I have come up with this video which is going to be the sample question paper blueprint analysis. Fine. So CBSE has released the sample question paper for class 10th on its official portal, and we were waiting for CBSE to upload the sample papers for skill subjects. So today it has uploaded these papers, and without wasting any time, let us quickly dive into this video in order to understand what blueprint CBSE has offered, because this time the paper is going to be of subjective pattern. So let us see how CBSE has framed the sample paper and how it has given the marks distribution unit wise. Fine. So let me take you to the CBSE website without actually wasting any time. I'll take you to the CBSE website बेटा. और CBSE की वेबसाइट पर जब आप जाओगे बच्चा, मुख्य वेबसाइट, ये मेन वेबसाइट पर जब आप क्लिक करते हो, यू आर ब्रॉट टू दिस पेज. फाइन. तो आपको CBSE की वेबसाइट में जाकर मेन वेबसाइट पर क्लिक करना है, पोर्टल पर जाकर cbse.gov.in मेन वेबसाइट. दिस इज when you click on this button, you will be taken to this home page. Here you have to go to quick navigation, fine, and click on academics. So this is going to open you the cbse.academics website. फाइन. जब आप इस वेबसाइट को ओपन करते हो तो आपके पास यहाँ पर स्किल एजुकेशन सेक्शन आएगा. क्लिक ऑन स्किल एजुकेशन. फाइन. स्किल एजुकेशन पर आकर आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स पर क्लिक करना है. Here you can see this new information, this new link being flashed. सेशन 2021-22 में जहाँ 2 टर्म्स में आपके एग्जाम्स कंडक्ट होने हैं, एक टर्म आप दे चुके हो, सो टर्म 2 के लिए क्लास 10th का लिंक आ चुका है. जस्ट क्लिक ऑन दिस लिंक एंड द वेरी सेकंड मतलब फर्स्ट रो में सेकंड ऑप्शन आपका है 402 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. Click on SQP, that stands for sample question paper. This is going to open up the sample question paper for term 2 on your devices. And if you will click on MS, that stands for marking scheme. That is going to open for you the marking scheme of this question paper. So I've already downloaded these papers. I'll provide their links in the video's description, and I will take you to the place where I have downloaded these questions. It's already open in front of me, so that we can have an analysis of the blueprint of this paper. This blueprint is very, very important, children. You must have a thorough understanding of blueprint. Papers को download करने के बाद, now let's get into the blueprint analysis. So this is CBSE Department of Skill Education, Information Technology, subject code 402, class 10th. This special session, as I have been always saying, you're giving good fight, children. Your teachers are giving good fight. This is 2021-2022, and we are now going to take up the blueprint for sample question paper for term 2. Unlike term 1, which was purely objective, this is going to be a subjective paper of 25 marks. फाइन. 25 मार्क्स आप टर्म 1 में ऑलरेडी अपेयर हो चुके हो. यू विल गेट 1 hour टाइम, दैट इज 60 minutes टाइम टू अटेम्प्ट दिस पेपर. तो अब ये 25 और टर्म 1 के 25 जुड़ के आपका टोटल वेटेज आएगा थियोरी का बच्चा 50 मार्क्स. 50 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल्स में है. हाउ टू अंडरस्टैंड द कोर्स आउटलाइन, द वीडियो इज ऑलरेडी देयर ऑन द चैनल. उसको आप देख लीजिएगा, रेफर कर लीजिएगा बच्चा. So this paper is again going to be divided into 2 parts. Part A will be based on employability skills, that is going to carry 5 marks. ठीक है बेटा. And part B is going to be based on subject skills, which is going to carry 20 marks. Fine. Detailed unit wise किस तरह के से ये marks हैं, कोर्स आउटलाइन क्या है, ठीक है ना. कोर्स आउटलाइन का वीडियो आप देख लीजिएगा. आई विल प्रोवाइड द लिंक इन वीडियोस डिस्क्रिप्शन. डू वॉच इट बिफोर यू वॉच दिस वन. फाइन. सो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स 5 मार्क्स का आपका टर्म 1 में आया था, अब आपका यहाँ पर भी 5 मार्क्स का ही आ रहा है. एंड दिस टाइम वी आर गोइंग टू हैव 2 चैप्टर्स बच्चा, लेफ्ट ओवर चैप्टर्स from those 5 units which are there in employability skills. Unit number 4, which is entrepreneurial skills, and unit number 5, which is green skills. So let us see how CBSE has divided the question papers. Pattern क्या रखा है? CBSE has given very short answers. ठीक है. Very short answers जो 1 mark के होंगे. बच्चा short answers जो कि 2 marks के होंगे each. ठीक है ना, 1 mark each. Very short answer
1 mark each, sorry 2 marks each short answer and there will be no long answer. This LA means long answer जो 4 marks के आपके पेपर में आएंगे, नेक्स्ट सेक्शन में होंगे, बट सेक्शन ए दैट इज पार्ट ए में यू विल नॉट हैव एनी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन. फाइन. पहले देखते हैं चैप्टर वाइज आपको कैसे कैसे प्रिपेयर करना, सॉरी मार्क्स वाइज कैसे लेना है. एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स से आपको 1 मार्क के 2 क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, 1 मार्क के 2 क्वेश्चंस आएंगे और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा बच्चा. सो एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स से टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए बच्चे? 2 + 1 3. ग्रीन स्किल्स से भी यू विल गेट 2 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच and 1 question of 2 marks. Fine. So 2 + 1 3. You are going to get total number of questions 3 from this unit. So 3 + 3 कितना हो गया बच्चा? 6. ठीक है ना. और इधर अगर आप 2 + 2 देखते हो, दिस इज 4 क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क के. अगर आप 1 + 1 देखते हो तो ये आपके 2 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स के. और 4 + 2 6, ऐसे भी आपका टोटल टैली हो गया. चैप्टर वाइज टोटल देखो या क्वेश्चन वाइज टोटल देखो तो आपके 6 क्वेश्चंस बन जाते हैं. अब बात करते हैं चॉइसेस की. आपको कितने पेपर में इनमें से कितने चॉइसेस को अटेम्प्ट करना है, कितने क्वेश्चंस की चॉइसेस आपके पास है. सो आउट ऑफ दीज 4 1 markers you have to attempt any 3 बच्चा, any 3. ठीक है, 4 जो 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं उसमें से you have to attempt any 3 and out of these 2 markers जो 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस हैं उसमें से you have to attempt any 1. ठीक है. सो 3 + 1 कितने हो गए? 4. और 6 में से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं बच्चे? 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. ठीक है ना. सो फिर से बता देती हूँ, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स से यू विल गेट 2 मार्क्स क्वेश्चन, 2 1 मार्कर्स एंड 1 2 मार्कर. ग्रीन स्किल्स से यू विल गेट 2 1 मार्कर्स एंड 1 2 मार्कर. टोटल आपको 1 मार्कर्स 4 होंगे जिसमें से यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 3 एंड टोटल आपको 2 मार्कर्स यानी शॉर्ट आंसर्स 2 होंगे जिसमें से यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 1. ओवरऑल इन दिस सेक्शन आउट ऑफ द टोटल 6 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4. फाइन. सो अब आप देख लो, जब ये 3 मार्क्स का 3 क्वेश्चन जो आपको 1 मार्क्स के अटेम्प्ट करने हैं, दिस इज गोइंग टू फेच यू 3 मार्क्स. और जो आपको 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, सो 1 × 2 दिस इज गोइंग टू फेच यू 2 मार्क्स. और 3 + 2 अगर आप करते हो तो आपका सेक्शन ए जो यहाँ पर गिवन है 5 मार्क्स का बच्चा इस तरीके से अटेम्प्ट करना है. ठीक है. सो आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स मूव टू सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स व्हिच इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम, दिस इज गोइंग टू कैरी द हाईएस्ट वेटेज. 20 मार्क्स का ये सेक्शन होगा. देखते हैं कैसे कवर करना है. कोर्स आउटलाइन मैं इसकी दे चुकी हूँ, प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देख लेना. नाउ यू आर गोइंग टू गेट यूनिट 3 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम and you are going to get unit 4 web applications and security. ठीक. क्वेश्चन पेपर्स, क्वेश्चन पैटर्न देखते हैं. वेरी शॉर्ट आंसर 1 मार्क ईच, शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स ईच, लॉन्ग आंसर अब आपका इंट्रोड्यूस हो गया है 4 मार्क्स ईच. ठीक है. सो अब देखते हैं कितने चैप्टर वाइज किस तरीके से हैं. फ्रॉम डेटाबेस मैनेजमेंट यू आर गोइंग टू गेट 3 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच. ओके, 3 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच. देन you are also going to get 3 short answer questions of 2 marks each. ठीक, 3 short answer questions of 2 marks each. And you are going to get 1 long answer question of 4 marks. 1 long answer question that is going to carry 4 marks. So 3 + 3 + 1 अगर आप करते हो, so this unit is going to carry total 7 questions in the question paper. Part B में 7 questions आपके DBMS chapter से होंगे. ठीक. Let's proceed to unit number 4 which is web applications and security. 1 mark 3 questions same as above. In case of the above unit 1 mark के यहाँ पर भी 3 questions होंगे बच्चा. 2 marks के भी यहाँ पर 3 questions होंगे as in unit 3. unit 4 से भी 3 questions आएंगे 2 marks के. लेकिन यहाँ लॉन्ग आंसर एक बढ़ा दिया गया है. लॉन्ग आंसर यहाँ पर आएंगे 2. लॉन्ग क्वेश्चंस जो आपके पूछे जाएंगे लॉन्ग आंसर बेस्ड वो 2 पूछे जाएंगे. DBMS में 1 था, यहाँ पर 2. ठीक. सो 3 + 3 + 3 + 2 this is going to give you 8 questions. Total number of questions from web applications would be 8 and from DBMS would be 7. ठीक है बच्चा. अब देखते हैं ये टोटल क्वेश्चंस इस तरह से मार्क्स वाइज कैसे आता है. 3 + 3 1 मार्क के 6 क्वेश्चंस. ठीक. 3 + 3 2 मार्क्स के भी 6 क्वेश्चंस एंड 1 + 2 3 मार्क्स के, सॉरी मैंने 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस. आई एम सो सॉरी बच्चा. 1 मार्क के 6 क्वेश्चंस, 3 + 3 6 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स एंड 1 + 2 3 क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स. समझ गए ना.
तो 6 + 3 कितना हो गया बच्चा? दिस इज गोइंग टू कैरी 15 मार्क्स। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैं एक बारी फिर से बता देती हूँ, DBM में 1 मार्क के हमारे पास दोनों यूनिट से 3 ईच होंगे, टोटल 6 क्वेश्चंस। 2 मार्क्स के 3 ईच, 6 क्वेश्चंस। 4 मार्क्स के 1 question from DBMS and 2 questions from web applications and security, 3 questions. 6 + 6 + 6 total 15 questions होंगे। अब बात करते हैं choices की कि आपको कितने questions attempt करने हैं out of the given. So 1 mark के बच्चे आपको 6 में से 4 attempt करने हैं, ठीक है ना? Out of 6 you have to attempt any 4. Similarly 2 marks के भी 6 questions में से आपको attempt करने हैं any 4. और 3 जो आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं उनमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं एनी 2। ठीक, सो अगर हम जोड़ी 4 + 4 + 2, ये कितना हो जाएगा बच्चा? 10 क्वेश्चंस, यानी कि आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस इन विच यूनिट? इन सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स पार्ट बी यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 10 आउट ऑफ 15, एनी 10 यू हैव टू अटेम्प्ट। ठीक, तो अब मार्क्स वाइज टोटल देख लेते हैं। जब 4 मार्क्स के आप कोई 1 मार्क के आप अटेम्प्ट करोगे, सो टोटल 1 मार्कर्स आपके कितने हो गए? 4 मार्क्स के। टोटल मार्क्स 4 मार्क्स हो गए बच्चा। 2 मार्क्स के आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, सो 4 × 2, ये टोटल कितना हो गया? 8 मार्क्स के हो गए बच्चा। और 3 लॉन्ग में से जब आप 2 अटेम्प्ट करोगे, जो एक क्वेश्चन 4 मार्क का है, तो 2 × 4 8। ठीक, सो 8 मार्क्स के आपको यहां से स्कोर करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सो लेट्स ऐड 4 + 8 12, 12 + 8 20। ठीक है ना बच्चा? सो देख लो आपका यहाँ टैली हो गया। 20 मार्क्स का आपको पार्ट बी अटेम्प्ट करना है, 5 मार्क्स का आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से अटेम्प्ट करना है। सो दिस 20 + दिस 5 टोटल आपका थ्योरी वेटेज हो जाएगा बच्चे 25 मार्क्स का। किसके लिए? टर्म 2 की थ्योरी के लिए। Term 2 theory paper, which is going to be based on subjective pattern this time, is going to carry 25 marks. You will get 60 minutes, that is 1 hour, to attempt this paper. I'll be back soon with the sample paper video. Sample paper को हम discuss करेंगे, marking scheme को discuss करेंगे. In a day or two, I will be back with the video of sample paper analysis plus sample paper का डिस्कशन, उसकी पूरी कवर अप करेंगे उस वीडियो में। सो आई होप आपको ब्लूप्रिंट क्लियर हो गया होगा। गेट द प्रिंट आउट ऑफ दिस पेज डन बच्चा। सैम्पल पेपर का प्रिंट आउट निकलवाइए, मार्किंग स्कीम का प्रिंट आउट निकलवाइए और अपने साथ एक सेफ पोजीशन पर अपनी आईटी की फाइल में इसको लगाइए। गेट रेडी फॉर टर्म 2, बिकॉज सैम्पल पेपर जब आ जाता है बच्चा, इसका मतलब हो गया कि अब काउंटडाउन फॉर द एग्जाम्स हैज बिगिन एंड वील हैव टू बी वेरी वेरी थॉरली प्रिपेयर्ड फॉर दिस सब्जेक्टिव पेपर of term 2 as we were in the objective paper of term 1. So till we meet again, happy learning. God bless you बच्चा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना और सैम्पल पेपर की वीडियो के साथ आई कैच यू सून। सो टिल वी मीट अगेन, टेक केयर।